हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अफू, योर फेवरेट डेस्टिनेशन। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही यूजफुल वर्ड, दैट इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या होता है? टुवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है की ओर, मतलब किसी डायरेक्शन की ओर, की तरफ, के प्रति। ये इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। इसका यूज हम डायरेक्शंस दिखाने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए और गोल्स के लिए करते हैं। चलिए डिटेल्स में जल्दी से समझते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। ओके, सो दिस इज अ वर्ड टुवर्ड्स इन इंग्लिश, ओके, व्हिच मींस की ओर या की तरफ इन हिंदी। टुवर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर और की तरफ हिंदी में। चलें देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके 3 यूजेस को जानेंगे और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। 10 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे आज। पहला यूज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यूज हम टुवर्ड्स का करते हैं डायरेक्शंस को बताने के लिए या फिर मूवमेंट्स को बताने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। We use towards when someone or something is moving in a particular direction. इसका मतलब ये है कि हम towards का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई भी इंसान या कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। Let us see 10 examples with explanation. Each example will have an explanation to clear your confusion. Okay, let's start our video. Let's see the first sentence. The first sentence is she is walking towards the school. She is walking towards the school का मतलब होता है वो स्कूल की ओर चल रही है। इसका सिंपली मतलब होता है she is going in the direction of the school. As you can see, the explanation is written here. She is going in the direction of the school. वो स्कूल की ओर चल रही है, मतलब वो स्कूल की डायरेक्शन में चल रही है। तो हम यहाँ पे towards का इस्तेमाल डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। All right, let's see the another one example. Next example is we are going towards the city. We are going towards the city. It means our movement is in the direction of the city. हम शहर की ओर जा रहे हैं। We are going towards the city. इसका मतलब है हम शहर की ओर जा रहे हैं। हम शहर की ओर जा रहे हैं। We are going towards the city. Next example is the bus is moving towards Delhi. The bus is moving towards Delhi. इसका explanation है the bus is traveling in the direction of Delhi and इसका मतलब है बस दिल्ली की ओर जा रही है। The bus is moving towards Delhi. The bus is moving towards Delhi. बस दिल्ली की ओर जा रही है। Next example है he looked towards the sky. He looked towards the sky means his eyes were in the direction of the sky. उसने आसमान की ओर देखा। He looked. यहाँ हमने देखा क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पे हमने look नहीं looked बोला है। He looked towards the sky. उसने आसमान की ओर देखा means his eyes were in the direction of the sky. The children are walking towards the playground. The children are walking towards the playground. इसका explanation है the children are going in the direction of the playground. मतलब बच्चे मैदान की ओर जा रहे हैं। The children are walking towards the playground. Let's see this one. The road goes towards the river. The road goes towards the river means the road is in the direction of the river. ये सड़क नदी की ओर जाती है। जब हमें ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है कि ये सड़क नदी की ओर जाती है, यहाँ जो की ओर यूज किया गया है उसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर टुवर्ड्स एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया है। द रोड गोज टुवर्ड्स द रिवर। नेक्स्ट है शी टर्न टुवर्ड्स मी. शी टर्न टुवर्ड्स मी मीन्स शी मूव्ड हर फेस और हर बॉडी इन माई डायरेक्शन मीन्स उसने मेरी ओर रुख किया, उसने मेरी ओर देखा या we can say उसने मेरी ओर रुख किया। Next is the train is coming towards the platform. The train is coming towards the platform. Explanation is the train is moving in the direction of the platform. Train platform की ओर आ रही है। The train is coming towards the platform. Let's see this one. We are heading towards the market. We are heading towards the market का मतलब होता है we are going in the direction of the market. मतलब हम बाजार की ओर जा रहे हैं। We are heading towards the market. It means कि हम बाजार की ओर जा रहे हैं। Let's see the last example with the first use of directions of towards.
The road from here leads towards the airport. The road from here leads towards the airport. इसका explanation है this road goes in the direction of the airport. मतलब ये सड़क हवाई अड्डे की ओर जाती है. ये सड़क हवाई अड्डे की ओर जाती है. जैसा कि हमने देखा था कि आज हम टुवर्ड्स के 3 यूज देखने वाले हैं, जिसमें से हम पहला यूज देख चुके हैं, यूज नंबर 1, जो कि हम डायरेक्शंस को शो करवाने के लिए यूज करते हैं. अब हमारा जो सेकंड यूज है वो हम एटीट्यूड या फीलिंग्स को दर्शाने के लिए करेंगे. बिफोर एग्जाम्पल्स लेट्स लुक हियर. वी यूज टुवर्ड्स टू डिस्क्राइब समवन्स बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग्स अबाउट अदर्स. इसका सिंपली मतलब ये है कि हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल इंसान के बिहेवियर, एटीट्यूड और उसकी फीलिंग्स जो वो दूसरे के लिए रखता है उसको दर्शाने के लिए भी करते हैं. Let us look at the examples to clear our confusion. 10 examples you will get here with the explanation. Let's look at the first example, that is, she is very polite towards her teachers. She is very polite towards her teachers. It means her behavior with teachers is very polite. वह अपने शिक्षकों के प्रति बहुत विनम्र है. It means her behavior with her teachers is very polite. She is very polite towards her teachers. वह अपने शिक्षकों के प्रति बहुत विनम्र है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स पुअर पीपल. ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स पुअर पीपल मीन्स हिज एटीट्यूड विद पुअर पीपल इज वेरी काइंड. वो गरीबों के प्रति बहुत दयालु है. ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स पुअर पीपल. पेरेंट्स आर केयरिंग टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स आर केयरिंग टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. इट मीन्स पेरेंट्स शो केयर एंड लव टू देयर चिल्ड्रन. माता पिता अपने बच्चों के प्रति देखभाल करने वाले होते हैं, विच इज वेरी वेरी ट्रू. हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति देखभाल करने वाले होते हैं. पेरेंट्स आर केयरिंग टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. लेट्स सी द एग्जाम्पल. हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी हैज चेंज्ड. Her attitude towards me has changed means the way she behaves with me is now different. जब भी हमें किसी के बारे में बताना होता है कि इसका रवैया मेरे साथ, उसका एटीट्यूड मेरे साथ बहुत चेंज हो गया है पहले से, तो हम कैसे बोलेंगे? हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी हैज चेंज्ड. उसका रवैया मेरे प्रति बदल गया है. उसका रवैया मेरे प्रति बदल गया है. हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी हैज चेंज्ड. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल एटीट्यूड्स दिखाने के लिए भी करते हैं. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल एटीट्यूड को दिखाने के लिए भी कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन. वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन. वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन. इट मीन्स आवर बिहेवियर शुड बी रिस्पेक्टफुल विद ऑल पीपल. हमें सबके प्रति सम्मानजनक होना चाहिए, मतलब हमें सबके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. Next, the teacher was strict towards lazy students. The teacher was strict towards lazy students. मतलब his behavior with lazy students was strict. The teacher's behavior was strict with the lazy students. Okay, शिक्षक आलसी छात्रों के प्रति सख्त थे. The teacher was strict towards lazy students. शिक्षक आलसी छात्रों के प्रति सख्त थे. Now let's see another one example. That is, she is very friendly towards new students. She is very friendly towards new students. मतलब वह नए छात्रों के प्रति बहुत दोस्ताना है. Friendly, okay? इसका explanation है she behaves nicely with new students. Means we are talking about a girl who behaves nicely with the new students. Let's see another one example. That is, his behavior towards his colleagues is always positive. It means he shows a good attitude to his colleagues. उसका व्यवहार अपने सहकर्मियों के प्रति हमेशा अच्छा है. उसका व्यवहार अपने सहकर्मियों के प्रति हमेशा अच्छा है. His behavior towards his colleagues is always positive. Let's see this. Don't be rude towards your parents. Here is a suggestion for every children, okay? Don't be rude towards your parents. अपने माता पिता के प्रति रूखे मत बनो. Rude. You should not behave rudely with parents because it's not a good thing. We should behave nicely with the parents, right? Next example is the government must be sensitive towards public needs.
द गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पब्लिक नीड्स। इसका मतलब है सरकार को जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सरकार को जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पब्लिक नीड्स। गवर्नमेंट शुड केयर अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल। नाउ लेट अस सी द थर्ड यूज ऑफ द टुवर्ड्स। ओके, तीसरा यूज हम किस लिए करते हैं टुवर्ड्स का? कोई भी पर्पस बताने के लिए, या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर कोई गोल को अगर हमें बताना होता है तो हम वहां पर टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज टुवर्ड्स व्हेन टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू अ कॉज और मूविंग क्लोजर टू अ गोल। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज she denoted money towards the new hospital. She denoted money towards the new hospital. उसने नए अस्पताल के लिए पैसे दान किए। The explanation is her money will be used for the hospital. Okay, because the girl has already denoted money towards the new hospital. उसने नए अस्पताल के लिए पैसे दान किए। Now the next example is this is the first step towards success. This is the first step towards success. Explanation is this action helps in moving closer to success. In Hindi we can see ये सफलता की ओर पहला कदम है। This is the first step towards success. ये सफलता की ओर पहला कदम है। Next example is he is working hard towards his dream job. He is working hard towards his dream job. इसका explanation है his hard work is for his ड्रीम जॉब। वह अपनी सपनों की नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है। वह अपनी सपनों की नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, मतलब ही इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स हिज ड्रीम जॉब। वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट। वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आवर एफर्ट्स शुड हेल्प इन सोशल प्रोग्रेस। मतलब हमें सामाजिक विकास में योगदान देना चाहिए। वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट। Next example is the company gave funds towards education. The company gave funds towards education मतलब कंपनी ने शिक्षा के लिए धन दिया। Explanation is money is given for the purpose of education by the company. Okay. Next, she is saving money towards her higher studies. इसका मतलब है वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचा रही है। She is saving money, वो पैसे बचा रही है towards her higher studies, अपनी पढ़ाई के लिए। Let's see the explanation. She is collecting money for her studies. Okay. She is saving money towards her higher studies. वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचा रही है। She is collecting money for studies. His efforts are directed towards better results. His efforts are directed towards better results means उसके प्रयास अच्छे परिणामों की ओर केंद्रित हैं। The explanation is his work is focused on better results means वो अच्छे results पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। Okay, his efforts are directed towards better results. Next example is the campaign is a move towards equality. The campaign is move towards equality means ये अभियान समानता की ओर एक कदम है। ये अभियान समानता की ओर एक कदम है। The campaign is helping society become equal. The campaign is a move towards equality. The another example is the government is taking steps towards women's safety. The government is taking steps towards women's safety means the actions are for women's safety. सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। The government is taking steps towards women's safety. And the last example of us is this training will help you move towards your goal. This training will help you move towards your goals means the training will support you in reaching your goals. Let's look at the Hindi of this. Yes, this training will help you move towards your goals. मतलब ये परीक्षण आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। Let's recap fast. Okay. टुवर्ड्स का इस्तेमाल हम की और के प्रति और के लिए बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला यूज हमने देखा था कि हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल डायरेक्शंस को बताने के लिए करते हैं, जैसे कि वॉक टुवर्ड्स द स्कूल। ओके। सेकंड यूज हम एटीट्यूड दिखाने के लिए करते हैं, बी पोलाइट टुवर्ड्स टीचर लाइक।
एंड थर्ड यूज हम किसी भी पर्पस कोई भी मकसद के लिए करते हैं, लाइक कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ गुड कॉज. Okay, let's end up our video. So friends, now you know how to use the word towards in three main ways: direction, attitude and purpose. आप अपने खुद के sentences बनाइए और comments में लिखिए. Don't forget to like, share and subscribe to English with Appu. See you in the next lesson. Till the time, bye everyone. Take care of yourselves.